السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایران نے امریکہ، اسرائیل اور پوری دنیا کے خلاف اب تک کا سب سے بڑا قدم اٹھا لیا ہے، اور ایران کا وہ قدم ہے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنا۔ بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ ایران جو اپنا آخری قدم اٹھا سکتا ہے، ایران جو اپنی چال چل سکتا ہے امریکہ کے خلاف، پوری دنیا کے خلاف، وہ ابنائے ہرمز کو بند کرنا ہے۔ اور فائنلی 28 فروری کی دیر شام کو، یا کہہ لیجیے رات کو، ایران نے ابنائے ہرمز کو بند کر دیا۔ اور ابنائے ہرمز کو بند کرنے کا مطلب ہے پوری دنیا میں تیل کی قیمت بڑھے گی، پیٹرول کی قیمت بڑھے گی، عرب ممالک ڈائریکٹ اس سے متاثر ہوں گے، انڈیا پر بھی اس کا اثر پڑے گا، چین اور روس پر اثر پڑے گا، اور پھر اس جنگ میں نہ چاہتے ہوئے بھی روس اور چین کو کھل کر ایران کا ساتھ دینا ہوگا۔ امریکہ پر بھی اثر پڑے گا، یورپ پر تو ڈائریکٹ اثر پڑے گا، اور مہنگائی کی مار امریکہ کو بھی جھیلنی پڑے گی۔ اور جس طرح عراق کے ساتھ جنگ میں امریکہ کی اکنامی کا شدید نقصان ہوا تھا، اس کے بعد افغانستان کے ساتھ جنگ میں امریکہ کا نقصان ہوا، اور ادھر چین ترقی کرنے لگا، چین بڑھنے لگا، اور چین اس وقت سپر پاور طاقتوں کی فہرست میں آ چکا ہے۔ اس قدم کے بعد امریکہ کا اور نقصان ہونے والا ہے، اور امریکہ کا جو دبدبہ ہے وہ بہت جلد ہی کم ہونے جا رہا ہے۔ ابنائے ہرمز کی اتنی اہمیت کیوں ہے اس کو جان لیجئے، لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ صبح ہو چکی ہے، اور رات بھر امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران کے مختلف علاقوں کو، مختلف ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، مختلف علاقوں کی بمباری کی گئی۔ 200 سے زیادہ فائٹر پلین کا استعمال کیا ہے اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اسرائیل میزائلوں کو بھی لانچ کر رہا ہے ایران کی طرف، اور میزائل بھی ایران پر گرا رہا ہے۔ ادھر ایران کی طرف سے بھی لگاتار اسرائیل پر میزائلوں کی برسات کی جا رہی ہے، اور ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے، IDF کا دعویٰ ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اس طرح کے خطرناک میزائلوں کا اسرائیل کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور بہت سارے میزائلوں کو ڈیٹیکٹ کرنے میں یا ان میزائلوں کو روکنے میں اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم لگاتار ناکام ہے۔ امریکہ کا ایئر ڈیفنس سسٹم ناکام ہو چکا ہے بحرین میں، کویت میں اور دوسرے جگہوں پر، جو میں نے آپ کو بتایا پچھلی ویڈیو میں کہ کویت میں امریکی فوجی اڈے پر حملہ ہوا، 12 زخمی ہو گئے، اور 3 امریکی فوجی اہلکار شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کویت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جا کر ایران کا ڈرون گرتا ہے، اور وہاں کئی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں۔ بحرین میں تو سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے، امریکہ کا بحری بیڑا تباہ ہو گیا ہے۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا۔ اس کے علاوہ کئی اونچی اونچی عمارتوں پر جا کر کے ایران کا ڈرون گرا ہے، اور ان عمارتوں میں آگ لگ گئی ہے، اور پورے بحرین میں ڈر، دہشت اور خوف کا ماحول ہے۔ اردن کی ہی صورتحال ہے۔ بہرحال ان سب پر پچھلی ویڈیو میں نے بات چیت کی تھی۔ ابنائے ہرمز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اپنی اسکرین پر اس میپ کو دیکھیے، اس نقشہ کو دیکھیے۔ ابنائے ہرمز، جس کو اسٹریٹ آف ہرمز کہا جاتا ہے، یہ ایک گزرگاہ ہے، ایک سمندری راستہ ہے جو دنیا کے 3 سمندروں کو آپس میں ملاتا ہے، یا ان کے بیچ میں یہ پل کا کنیکٹیوٹی کا کام کرتا ہے۔ ایک طرف پرشین گلف، دوسری طرف گلف آف عمان، اور ادھر عربین سی۔ تو یہ 3 سمندر ہے جن کو اسٹریٹ آف ہرمز آپس میں جوڑتا ہے، ملاتا ہے، اور عرب ممالک سے جو تیل دنیا بھر میں جاتا ہے تو اسی ابنائے ہرمز سے ہو کر گزرتا ہے۔ اور یہ جو پورا کا پورا ابنائے ہرمز ہے، یعنی اسٹریٹ آف ہرمز، یہ ایران کے کنٹرول میں ہے، یہ مکمل طور پر ایران کے قبضے میں ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ اور یہ ادھر پرشین سی کو، ادھر عمان سی کو اور عربین سی کو، تینوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ سعودی عرب سے یا بحرین سے یا UAE سے جو تیلوں کی سپلائی بھارت میں ہوتی ہے، چین میں ہوتی ہے، روس میں ہوتی ہے، یا یورپ کے دیشوں میں ہوتی ہے، تو اسی اسٹریٹ آف ہرمز کے ذریعے ہوتی ہے۔ اسی طرح قطر کا جو گیس ہے، اس کی جو سپلائی دنیا بھر میں ہوتی ہے، وہ اسی گزرگاہ سے ہوتی ہے۔ خود ایران کا تیل جو چین جاتا ہے یا دنیا کے دوسرے دیشوں میں جاتا ہے، اسی اسٹریٹ آف ہرمز کے ذریعے سے جاتا ہے۔ تو یہ جو گزرگاہ ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں
पेट्रोल तेल की जो सप्लाई होती है तो 20% के लिए ही गुजरगाह है, और ख़ास तौर पर अरब ममालिक के लिए ये फिगर तो 60% से ऊपर हो जाता है। तो इतना अहम ये रास्ता है, इतनी अहम गुजरगाह है, और ये पूरा ईरान का है, और ईरान ने अब इसको बंद कर दिया है। ईरान की तरफ से बंद करने का मतलब यह है कि सऊदी अरब और दूसरे अरब देशों का, खुद ईरान का जो तेल इस रास्ते से भारत आता था, दूसरे देशों में जाता था, अमेरिका जाता था, वो अब नहीं जा पाएगा। उन देशों में जो पेट्रोल है उसी पर इन्हिसार करना पड़ेगा, और उसकी वजह से वहाँ पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, डीजल की कीमत बढ़ेगी, अशिया की कीमत बढ़ेगी। अमेरिका पर डायरेक्ट असर नहीं पड़ेगा क्योंकि अमेरिका के पास रिज़र्व ऑयल पहले से बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद अमेरिका को भी तेल इन्हीं देशों की तरफ से सप्लाई होता है, तो अमेरिका का रास्ता भी बंद होगा। फौरी तौर पर अमेरिका पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यूरोप के देशों पर असर पड़ेगा, भारत पर असर पड़ेगा, पूरे खित्ते पर असर पड़ेगा, और इसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी। और जब महंगाई बढ़ेगी तो पूरी दुनिया की इकनॉमी मुतासिर होगी, पूरी दुनिया की मैशत मुतासिर होगी। यकीनी तौर पर दुनिया भर के ममालिक दबाव भी बनाएंगे ईरान पर कि ईरान इस गुजरगाह को खोल दे, इस रास्ता को खोल दे, इसको बैन ना करे। और जब ईरान पर प्रेशर बनाया जाएगा, ईरान पर दबाव बनाया जाएगा कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को ओपन कर दे, उसको बंद ना करे, तो फिर ईरान मुतालबा करेगा दुनिया भर के ममालिक से कि अमेरिका को ईरान पर हमला करने से रोको, इजराइल को समझाओ वो ईरान से जंग करना बंद करे, ईरान पर हमला बंद करे। अगर ये लोग अपनी आर्मी को पीछे हटाएंगे, हमला बंद करेंगे, उसके बाद ही ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को ओपन करेगा, वरना नहीं करेगा। और जब पूरी दुनिया का प्रेशर होगा, पूरी दुनिया मुतासिर होगी, तो यकीनी तौर पर जो वर्ल्ड व्यू है, जो पूरी दुनिया का नज़रिया है, वो अमेरिका के ख़िलाफ़ होगा। अभी तो हैरत की बात यह है कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक चुप हैं, खामोश हैं, या वो किसी का साथ नहीं दे रहे हैं। अब तक चंद ही ममालिक हैं जिन्होंने अमेरिका और इजराइल के ईरान पर होने वाले हमले की मजम्मत की है, जिसमें चीन शामिल है, रूस शामिल है, उसके अलावा अरब के कुछ ममालिक शामिल है, वेनेजुएला शामिल है, कुछ मलेशिया शामिल है, जैसे हौसी ग्रुप ने इसकी मजम्मत की है, या हिजबुल्लाह ने मजम्मत की है, हमास ने कंडम किया है। इसके अलावा दुनिया के कई बड़े देशों ने खामोशी इख्तियार कर रखी है, और उन्होंने अमेरिका के ईरान पर होने वाले हमले को कंडम नहीं किया है। उसमें भारत भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, बड़े बड़े ममालिक शामिल है। पूरा यूरोपियन यूनियन अमेरिका के हमले की मजम्मत नहीं कर रहा है। हाँ, यूरोप के कुछ बड़े ममालिक ने यह ज़रूर कहा है कि ईरान पर होने वाली स्ट्राइक में वो अमेरिका के साथ नहीं हैं, वो बातचीत के ज़रिए मसले का हल चाहते हैं। तुर्किया का बयान सामने आया है। तुर्किया कह रहा है कि वो ईरान और अमेरिका इजराइल के दरमियान सालसी कराने के लिए तैयार है, क्योंकि जंगबंदी ही सलूशन है, वरना पूरा रीजन, पूरा इलाका जंग की लपेट में आ चुका है। तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने बाज़ाब्ता अपने ऑफिशियल खिताब में यह भी कहा कि खित्ते में एक नई जंग मुसल्लत की जा रही है, और इजराइल अपनी मनमानी कर रहा है, वो अनएक्सेप्टेबल है। जो हमला हुआ है वो ईरान की सवर्निटी और ख़ुद मुख्तारी पर हमला हुआ है। लेकिन इस तरह हिम्मत और जुरत के साथ बयान देने वाले बहुत कम ममालिक हैं, और ऐसे में अबनाए हुर्मुज़ के बंद होने का मतलब है पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। चीन और भारत सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा। भारत इस वक्त किसके साथ है ये सबको पता है। भारत ने इस हमले की मजम्मत नहीं की है, जबकि एशिया के एक मुल्क पर हमला हुआ, और इस नाते भारत की जिम्मेदारी थी कि अपने एशिया के देश का वो साथ दे। लेकिन भारत ने अमेरिका के होने वाले हमले को कंडम नहीं किया। 2 दिन पहले ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इसराइल से घूम कर आए हैं, और इसराइल को फादरलैंड बताए हैं, और उसका असर भी भारत में देखा जा रहा है। यहाँ का जो राइट विंग है वो इसराइल के साथ है, वो जश्न मना रहा है। इसराइल और अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है, और जब ईरान इसराइल पर हमले कर रहा है, इसराइल में तबाही है, बर्बादी है, हर तरफ इमारतें जल रही है, लोग बुंकरों में जाकर अपनी जानें बचा रहे हैं, तो इनको दर्द हो रहा है, इनको तकलीफ़ हो रही है, ये परेशान हो रहे हैं। और इनकी परेशानी की वजह यह है कि इनको मुसलमानों से प्रॉब्लम है। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर हमला होता है, मुसलमानों के साथ कोई जुल्म होता है, तो इनको खुशी मिलती है, इनको दिली तस्कीन मिलती है, क्योंकि ये इस्लामोफोबिया के शिकार हैं। मुसलमानों के ख़िलाफ़ इनके जहनो दिमाग में जहर भर दिया गया है, और इनसे इससे ज़्यादा की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। हालांकि देखा जाए तो अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान की लड़ाई में
ईरान को सपोर्ट न करने का, इजराइल और अमेरिका का साथ देने का कुछ मतलब नहीं बनता। अमेरिका का साथ देने का तो कुछ मतलब ही नहीं बनता। ये वही अमेरिका है जिसने इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दिया। अमेरिकी सदर ने कहा मैंने जंगबंदी कराई है, ट्रंप ने कहा कि राफेल को गिराया गया, और ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान की तारीफ की जा रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को डिनर पर बुलाया जा रहा है, उनका वेलकम किया जा रहा है, और इंडिया का मजाक उड़ाया जा रहा है कि मैंने सीज फायर करवाया है, मैंने नरेंद्र मोदी को धमकी दी है, और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ भी जवाब नहीं दिया गया। हालांकि यही कौम है जिसने ट्रंप की इक़्तिदार में वापसी के लिए, जीत के लिए हवन कराया था, पूजा पाठ कराया था, मंदिरों में जाकर के इन लोगों ने दुआएं मांगी थी कि ट्रंप की वापसी हो जाए, और ट्रंप ने वापस आते ही सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया। टैरिफ लगा रखा है, वो तो भला हो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का जिसने 10% तक टैरिफ को कर दिया है, वरना 25% लगा दिया था, फिर 50%, उसके बाद फिर 18% टैरिफ लगा दिया। जो यूएस और अमेरिका जो यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड डील हुई है, उस ट्रेड डील ने भी बता दिया कि अमेरिका किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। और इन सब के बावजूद ये इंडियन अनभक्त अमेरिका का साथ दे रहे हैं, ईरान पर होने वाले हमले पर जश्न मना रहे हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं। तो ऐसी कौम से ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन भारत पर असर पड़ेगा, क्योंकि भारत जो पेट्रोल आता है, जो तेल आता है, सऊदी अरब से आता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद कुछ दूसरे देशों से आता है। और जब अपनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया गया है तो भारत में पेट्रोल नहीं आ पाएगा, तेल नहीं आ पाएगा, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, तेल की कीमत बढ़ेगी, और इसका असर तमाम भारतीयों पर होगा, तमाम शहरियों पर होगा। जितने अनभक्त आज जश्न मना रहे हैं, एकदम कपड़ा उतार कर नाच और डांस कर रहे हैं, जब इन सबको पेट्रोल की ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी, इन सब पर महंगाई का असर पड़ेगा, तब इन सब की हैकड़ी निकलेगी, इन सबको अपनी औकात का पता चलेगा। खुद गल्फ़ में, दुबई में, सऊदी अरब में तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा इंडियंस रहते हैं, और वो सब हमलों की जद में है, क्योंकि ईरान तमाम मिडिल ईस्ट के देशों पर हमला कर रहा है। और उन देशों में सिर्फ मुसलमान नहीं रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। दुबई में तो मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस दुबई में हिंदुओं का है। रियाज में अब लोग अपनी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, और वो हमले की जद में है। लेकिन इसकी फ़िक्र इन अनभक्तों को नहीं है। इनको खुशी है कि इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है या दुबई पर, दूसरे देशों पर हमला हो रहा है, बस इसी बात की इनको खुशी है। लेकिन ईरान ने जिस तरह का कदम उठा लिया है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करने का, ये एक नया मामला है, लंबा मामला है, और ईरान पर पूरी दुनिया का दबाव पड़ेगा। लेकिन ईरान ने मास्टर स्ट्रोक से काम लिया है। इस वीडियो में इतना ही। पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान जो लड़ाई चल रही है, तो आप मिल्लत टाइम्स के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, कर लीजिए, और नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। शॉर्ट फॉर्मेट में अपडेट के लिए, ताज़ा तरीन अपडेट के लिए आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लीजिए, जहां हर सेकंड पर मिल्लत टाइम्स की टीम हर अपडेट आपको दे रही है कि कब क्या हो रहा है। क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है, सारी अपडेट को इकट्ठा करना पड़ता है, तो हर सेकंड पर वीडियो में अपडेट तो नहीं दी जा सकती। इसलिए मिल्लत टाइम्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी आप फॉलो कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है, और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 सालों से हर चैलेंज और मुश्किल का सामना करते हुए लगातार हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया के मैदान में काम कर रहे हैं, और आपने हमेशा हमें सपोर्ट भी किया है। मिल्लत टाइम्स सिर्फ यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है, बल्कि मिल्लत टाइम्स का अंग्रेज़ी डेस्क है, जहाँ अंग्रेज़ी में हम खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। मिल्लत टाइम्स का हिंदी डेस्क है, मिल्लत टाइम्स का उर्दू और बंगला डेस्क भी है, और 4 ज़ुबानों में हम वेबसाइट पर खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर हम खबरें पोस्ट करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर हम एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, और मिल्लत टाइम्स ने अब डॉक्यूमेंट्री बनाना भी शुरू कर दिया है। इस साल हमने एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद भी किया। मिल्लत टाइम्स की ऑफिस है, मिल्लत टाइम्स का 20 लोगों का स्टाफ है। इसके अलावा भी मिल्लत टाइम्स के कई सारे अखराजात हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, और आपने
आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। मिल्लत टाइम्स मज़ीद मजबूत होगा, हमारी टीम मज़ीद बड़ी होगी। आपकी स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, अकाउंट नंबर मौजूद है, UPI नंबर मौजूद है और गूगल पे, फ़ोन पे नंबर भी मौजूद है। आप जैसे चाहें मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी रकम हम तक भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और आपसे एक आखिरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को देखकर स्किप मत कीजिए, बल्कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए, अपनी स्टोरी में लगाइए और एक मजबूत मीडिया हाउस बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए।